General English for BCom 4th semester. So this is the prose Doll's House. You have author is Catherine Mansfield. So now today we will discuss about the author first. Full name Catherine Mansfield Boncham Murray, born in October 14, 1888, Wilton, New Zealand, and died January 9, 1923 in Fontainebleau, France. Notable works. The famous works are The Doll's House, Miss Brill, The Garden Party, Bliss. Style modernist, known for her exploration of साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड सोशल इशूज. इनके पोएम्स इनके लेसन ज़्यादातर कैसे रहते हैं, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सोसाइटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं. एंड थीम्स क्लास डिस्टिंक्शन, रिच पुअर, ये जो रहता ना वाइट ब्लैक क्लास डिस्टिंक्शंस, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में, एंड प्रीजुडिसेस, फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड सॉरो, कि कैसा अपने को ज़िंदगी में जो है सो खुशियाँ और गम से जुड़े हुए रहना रहता. ऐसे थीम्स रहते हैं इनके लेसन्स के. लिगेसी कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर, इन्फ्लुएंस लेटर रिटन बाय वर्जिन वुल्फ. So she is the famous short story writer. Now the characters in this lesson are, first you have to write down about the characters. Isabel Bernelli. Isabel is here. You have to remember 7 names, then you can easily understand the lesson. Isabel Bernelli, the eldest Bernal sibling, bossy and controlling. She represents entitlement and privilege. So here 3 sisters are there in Bernelli. Isabel, elder sister; Kezia, a kind-hearted Bernelli sibling who symbolizes innocence and comparison; and Lottie Bernelli, the youngest sibling, following her older sister. So these are the 3 sisters are there in the lesson. And opposite side, one more family will be there. Poor family. This is the rich family. 3 girls are there: Isabel Bernelli, Kezia Bernelli, Lottie Bernal, and Lil Kelvy. Opposite sides, poor girl. She is a shy poor girl who faces social discrimination but maintains dignity. And Else Kelvy, Lil's younger sister. These are 2 sisters, Lil Kelvy and Else Kelvy. So Lil's younger sister, quiet and observant sister, she is Else Kelvy. Next we have Aunt Beryl, a harsh prideful figure who upholds social norms. Aunt Beryl, ये 3 sisters जो है ना उनके मदर है. Mrs. Kelvy, the hardworking mother of the Kelvy children, representing resilience. So here 2 families are there, Aunt Beryl family and Mrs. Kelvy. ये these are the 2 mothers है. Mrs. Kelvy के 2 daughters है, Lil Kelvy and Else Kelvy. Aunt Beryl के 3 daughters है, Isabel Bernal, Kezia Bernal and Lottie Bernal. It's clear now. 7 characters you have to remember in the story. Now let's move to the core meaning. Catherine Mansfield's short story The Doll's House delves into the theme of class prejudice. ये लेसन क्या के बारे में है? क्लास प्रिजुडिस के अमीर गरीब को लोगों में कैसा डिफरेंस रहता उसके बारे में. एंड द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, और बचपना जो है सो कैसा इनोसेंट रहता. ठीक है, बहुत मासूम रहते बचपने में बच्चे, वो बारे में जो है सो अपने को यहाँ पर बताया गया. मेन थीम उनका यहाँ पर क्लास डिस्क्रिमिनेशन को बताया उन्होंने, और जो है सो इनोसेंसी ऑफ द चाइल्डहुड उसके बारे में बताए. हाईलाइटिंग हाउ सोसाइटल नॉर्म्स आर बायसेस एंड इनग्रेन्ड इन चिल्ड्रन बाई अडल्ट. बड़े लोग जो है ना बच्चों के अंदर जैसा आदत कैसा डालते जो है ना, डिफरेंस कैसा बताते हैं लोगों को, गरीबों से दूर रहना करना, वो बारे में जो है सो यहाँ पर बताए. द स्टोरी अनफोल्ड्स थ्रू द आइज ऑफ चिल्ड्रन बट इट प्रोवाइड्स ए शार्प कॉमेंट्री. एक बच्चों की दुनिया कैसी है उसके बारे में बताए, लेकिन शार्प कमेंट्री ऑन द अनफेयरनेस ऑफ क्लास डिविजन, लोगों में जो भेदभाव है मेन चीज़ उसके बारे में बताए. द डिवाइड सोसाइटी, अपनी सोसाइटी को कैसा डिवाइड करके रखे है हम लोग, अमीर गरीब के 2 हिस्सों में जो है सो वो चीज़ों को यहाँ पर अपने को स्टोरी के थ्रू बताया गया है. एट द हार्ट ऑफ द स्टोरी इज द बर्नल्स फैमिली डॉल्स हाउस. अब ये स्टोरी का पूरा हार्ट क्या है, मेन चीज़ क्या है? एक डॉल हाउस से शुरुआत होती है स्टोरी की. ए ब्यूटीफुल एंड इनक्रिकेट टॉय गिफ्टेड टू देम. इन लोगों को, ये बर्नल फैमिली को जो है ना एक
डॉल्स हाउस जो है सो ये 3 जो सिस्टर्स रहते हैं उन लोगों को गिफ्ट में मिलता है यहाँ पर स्टोरी में स्टार्टिंग में। द डॉल्स हाउस सिंबलाइजेस प्रिविलेज एंड ब्यूटी, उसके अंदर बहुत ब्यूटी को बताया गया है, बट ऑल्सो एक्सक्लूजन एंड इनइक्वालिटी भी उसके अंदर अपने को मालूम होती। इट्स टाइनी डिटेल्स स्पेशली द लिटिल एम्बर लैम्प, उसके अंदर जो है सो एक लैम्प रहता, ठीक है। आई थिंक लाइक दैट इट शोज नो इन द पिक्चर ऑल्सो इट हैज़ गिवन in some photos it has given that lamp, amber lamp, captive the children and become a source of fascination of everyone at school। तो ये 3 गर्ल्स जो रहते जब उनको ये डॉल्स हाउस मिलता तो डॉल्स हाउस के जो है सो लोग जब देखते हो लोग एक्चुअली उसमें पेंटिंग की पूरा स्मेल आती, वो जब ला के कोई गिफ्ट देते हो उनको तो उसमें पेंटिंग की गिफ्ट स्मेल आती, तो वो क्या करती उनकी मदर आंट बेरिल उसको जो सो बाहर रखा डालते कोर्टयार्ड में। तो वहाँ पर क्या होता ये लोग देखते हैं एंड जो एल्डर सिस्टर रहते सैबिल बर्नली, इन्हों जो है सो बहुत एक्साइटेड रहते कि स्कूल में जो है सो जाने के बाद मैं खुद अपने मतलब स्कूल में इसके बारे में आप दोनों सिस्टर को जो है सो वार्न करते हो कि यू शुड नॉट टेल एनीथिंग टू देम इन टू द स्कूल अबाउट द डॉल्स, आई ओनली विल डिक्लेयर, ये इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मैं ही डिक्लेयर करूँगी बोल के उन्होंने बोलते। तो ये इस स्कूल में जो है सो ये इन्फॉर्मेशन भेजती। एज द बर्नल्स आर फ्रॉम अपर क्लास, ये अच्छी क्लास की फैमिली रहती एंड द हाउस रिप्रेजेंट देयर वेल्थ एंड सुपीरियरिटी। अरे उनके घर में एक डॉल्स है, अब जैसा बच्चों में इमेजिनेशन रहता ना, एक हाई क्लास फैमिली के अंदर अगर एक अच्छा सा टॉय आ गया वगैरह तो लोग में बच्चों में जो एक्साइटमेंट रहता है उसको बताए लोगों की सुपीरियरिटी वेल्थ के जरिए से इन लोगों का जो गिफ्ट है वो भी बहुत अच्छा होगा, बल्कि बच्चे स्कूल में जब सुनते हैं उनके फ्रेंड्स तो सब जो है सो यहाँ पर एक्साइटमेंट हो जाते हैं उसको देखने के लिए। द बर्नल चिल्ड्रन इसाबिल, लॉटी, केजिया, 3 आर देयर, नो 3 गर्ल्स आर देयर, आर एक्साइटेड टू शो ऑफ द डॉल्स हाउस टू देयर स्कूल मेट्स। However, class boundaries dictate who is allowed to view it। अब यहाँ पर जो स्कूल था वो एक जो इनके सोसाइटी में जो स्कूल था एक्चुअली इट वॉज ओनली वन स्कूल, सिंगल स्कूल वॉज देयर इन फॉर द होल सोसाइटी फॉर द रिच पीपल चिल्ड्रन एंड द पुअर पीपल चिल्ड्रन, ठीक है। वही एक स्कूल था जहाँ पर अमीर और गरीब सब अपने बच्चों को भेजते थे, वहाँ पर दूसरा ऑप्शन नहीं था वो सोसाइटी के लोगों के लिए। सो यहाँ पर अब क्या होता, अब क्लास बाउंड्री आ जाती कि कौन आके देखेंगे, ओनली रिच, बिकॉज दिस आंट बेरिल नो शी इज सो स्ट्रिक्ट, शी अलाउस ओनली टू द रिच पीपल चिल्ड्रन ओनली, शी डिड नॉट अलाउ टू द poor people। She wants to her children that they should not make a friendship with the poor people children। So that's why it is a class boundary, it shows here that who will come, who will allow to view it। The Kelvis who come from a poor and Kelvis family जो थे ना 2 sisters जो थे who come from a poor and marginalized background, एक मिडिल क्लास फैमिली के थे लोग एंड डिलिबरेटरी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रिविलेज। अब उन लोगों को एक्सक्लूड निकाल दिया ये प्रिविलेज से कि दे कान कम टू देयर होम टू सी द डॉल्स हाउस। देयर पॉवर्टी इज स्टार्कली डिस्क्राइब इन द स्टोरी कि गरीबी कैसा रहती, ठीक है, पॉवर्टी की वजह से बच्चों को कैसा जो सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन कैसा फील होता है उन लोगों को उसके बारे में बताया गया। देयर फादर्स वेयर देयर लिटिल केल्वी वेयर्स क्लोथ्स मेड फ्रॉम स्कार्फ्स, ठीक है, जो पुराने कपड़े रहते हैं उसमें से पहनती है, और एल्स इज डिपिक्टेड टाइनी फ्रेल चाइल्ड। देयर फादर क्वेश्चनेबल बैकग्राउंड, कुछ जेल में वैसा कर रहते हैं उन्होंने, एंड देयर मदर्स जो सो वॉशर में वुमेन के जैसा काम करके इन दोनों को जो सो टेक केयर करती है उन्होंने। मेक देम द सब्जेक्ट ऑफ स्कॉफ ऑफ मॉकरी। Even adults like Aunt Beryl openly display their disdain for the Kelvis, reinforcing societal divisions। Aunt Beryl जो है ना स्ट्रिक्टली अपने बच्चों को जो है ना वार्न करके रख दिए कि इन लोगों से दूर रहना। एंड शी ऑल्सो वांट्स टू हर देयर मदर्स आल्सो, ठीक है, उनके मदर को भी जो है ना यहाँ पर बोल के रख दिए कि हमारे बच्चों से आपके बच्चों को दूर रखो बोल के। सो डिस्पाइट दिस केजिया द यंगेस्ट बर्नल, 3 गर्ल्स है ना इसके अंदर, इजाबिल बड़े हैं नो ILK,
इसाबिल, लॉटी, कीजिया। कीजिया जो है सो सबसे छोटी हो ना बर्नल फैमिली में, एक्ट एज ए बीकॉन ऑफ द काइंडनेस। अब वो मासूम बच्ची है, उसको ये रिच पुअर ये सब चीज़ों के बारे में नहीं रहता। शी वॉज सो काइंड एंड इनोसेंस अनलाइक लाइक ओल्डर सिस्टर, उनके बड़ी बहनों के जैसा नहीं थी उन्होंने। कीजिया डज नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट द सोशल रूल्स, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता था ये सोशल रूल्स के बारे में, रिच पुअर के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। दैट फॉरबिडन इंटरेक्शन विद द केल्विस, क्यों हम केल्विस से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उसको समझ में नहीं आता था। हर एक्शन सच एज इन्वाइटिंग द केल्विस टू व्यू द डॉल हाउस सिंबलाइज ए चाइल्ड्स अनटेन्ड परस्पेक्टिव फ्री फ्रॉम प्रिजुडिस। तो यहाँ पर एक बार क्या होता कि ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल के दो स्कूलमेट्स रहते हैं लोगों के, आगे जो है ना डॉल्स हाउस को देख के जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं वो लोग। लेकिन इन लोग को परमिशन नहीं मिला ना ये टू सिस्टर को, तो एक दिन वो लोग केल्विस के घर के सामने से जाते रहते वो लोग। तो यहाँ पर दिस बर्नल फैमिली के घर के सामने से जाते रहते हो लोग केल्विस ये। तो ये जो छोटी बहन जो है ना कीजिया, उनको देख के जो है अरे आप लोग भी आके जो है ये डॉल हाउस को देखो बोले, तो लोग देखते। तो यहाँ पर ये बच्चों का जो माँ बाप इतना रेस्ट्रिक्शन करने के बावजूद भी जो इनोसेंट हार्ट रहता उसको जो है बताया गया। कीजियास इन्विटेशन इज ए स्मॉल येट पावरफुल एक्ट था, वो बहुत छोटा काम था लेकिन बहुत पावरफुल था। यहाँ पर बहुत पावरफुल क्यों है, बिकॉज इट वॉज इनडिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर दूर कर दे रहे लोग, एंड रिबिलियन अगेंस्ट द रिजिड सोसाइटल के जो नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट जाके ये बच्ची जो है मासूम बच्ची उन लोगों को अलाउ कर रहे देखने, इम्पोज द अडल्ट अराउंड हर, इवन दो उनके सोसाइटी नॉर्म्स जो भी उनके इर्द गिर्द बड़े बना के रखे उन सब को तोड़ के जो है सो एक मासूम बच्ची जो है सो लोगों को इनवाइट करे। हाउएवर दिस मोमेंट ऑफ काइंडनेस इन शॉर्ट लिव्ड, बहुत शॉर्ट पीरियड के टाइम था। आंट बेरिल एम्बाइडिंग द प्रेजुडिस एंड सुपीरियरिटी ऑफ द अपर क्लास इंटरवीन हार्शली स्कोल्डिंग कीजिया को बहुत डांटे उन्होंने, बिकॉज शी इज लिविंग इन अपर क्लास फैमिली, सुपीरियरिटी विल बी देयर, शी इज सो हार्श कीजिया एंड शूटिंग द केल्विस अवे। तो वहाँ पर से वो लोग चले गए। दिस मोमेंट हाईलाइट हाउ डीपली रूटेड क्लास डिस्क्रिमिनेशन, कितना फ़र्क रहता ठीक है अमीर और गरीब में, एंड इज़ हाउ अडल्ट पास द बायसेस टू नेक्स्ट जनरेशन। अब ये चीज़ें बड़े लोग जो है सो बच्चों में कैसा जनरेशन टू जनरेशन पास कर रही है, फीलिंग्स क्या हो रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही। It also reflects the power imbalance as the Kelvis despite being mistreated। अब यहाँ पर ये केल्विस के साथ mistreated, oh how you come to our house, got from here बोल के ऐसा जो बड़े स्कोल कर रहे हैं, यहाँ पर डांट रहे, इंसल्ट हो जा रही बच्चों की, मिसट्रीट हो रहा है उनसे, एक्सेप्ट कर ले रहे ना फिर भी उसको विदाउट प्रोटेस्ट, बहस नहीं कर रहे, वहाँ से खामोश जो सो हेड डाउन करके वो लोग वहाँ से दोनों सिस्टर बाहर चले गए, बिकॉज दे नो द डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज दिस फैमिली इज रिच एंड वी आर द पुअर, दैट्स वाई वी हैव टू एक्सेप्ट वॉट एवर दे आर सेइंग टू अस। So illustrating the internalized acceptance of their lower social, even though the small kids they are accepting their societal discrimination and they are moving out from the house. The Kelvis quiet endurance stands in contrast to the cruelty the face। अब ये केल्विस को समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ही ऐसा क्रूएलिटी क्यों होता। एल सिंपल एक्ट ऑफ स्माइलिंग एंड रिमेंबरिंग द लिटिल लैम्प। अब यहाँ पर क्या है, ये स्टोरी का थीम क्या है बोले तो स्कूल के इतने सारे बच्चे इसको आके देखते ना, तो वो हाउस में जो है ना एक लैम्प भी रहता ठीक है, और डोर ओपन करने के बाद इन दैट एवरीथिंग, सोफास रहते, मैट्स रहती, कारपेट्स रहती, सो एक हाउस को कैसा इंटीरियर जो है डिजाइनिंग के उससे बहुत अच्छा रहता, एंड वन लैम्प विल बी देयर, दैट लैम्प विल बी सीन बाई जो है सो कीजिया को पसंद आता वो बर्नल फैमिली में, ओनली शी नोटिस दैट लैम्प एंड अप्रिशिएटेड इट। और उसके बाद जो है सो नेक्स्ट वो लैम्प स्कूल के कोई भी उसको सबको नॉर्मल दिखा, लेकिन नेक्स्ट वो लैम्प जो है सो एल सिस्टर को जो है सो बहुत अच्छा दिखा। फॉर एल्स द लैम्प रिप्रेजेंट द रेयर मूवमेंट ऑफ काइंडनेस एंड जॉय एंड समथिंग दैट ट्रांसेंड्स द बाउंड्रीज ऑफ क्लास। द लैम्प बिकम्स ए मेटाफोर है यहाँ पर ये ठीक है, एंड फॉर द एंड्यूरिंग पावर ऑफ स्मॉल एक्ट्स ऑफ गुडनेस इन एन अदरवाइज हार्श एंड अनफेयर वर्ल्ड। थ्रू दिस स्टोरी मैन्सफील्ड क्रिटिक्स द रिजिड क्लास स्ट्रक्चर जो है उनके टाइम पे
ठीक है, मैंसफील्ड क्या बता रहे कि ये क्लास स्ट्रक्चर जो है टाइम पे है, इवन दो इट इज एक्सिस्टिंग टुडे ऑनवर्ड्स, द क्यूरलिटी देयर perpetuates. She uses the interaction between the children to show how societal norms shape young minds. मासूम बच्चों के माइंड्स को कैसा जो है सो शेप कर दे रहे पेरेंट्स, ये उसको बताया गया. ऑफन टीचिंग देम टू एक्सक्लूड एंड जज अदर्स बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड. और उन्होंने बोल रहे कि किसी को भी जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करना उनके बैकग्राउंड के इसको देखिए. हाउएवर मैंसफील्ड ऑल्सो प्रोवाइड ए ग्लीमर ऑफ होप थ्रू कीजियास इनोसेंस. कीजिया की इनोसेंस, अगर ऐसे बच्चे मासूम बच्चे जैसा कीजिया यहाँ पर बताई गई स्टोरी में, इफ एवरी चाइल्ड ग्रो लाइक दैट विथ हर इनोसेंस दैट दे डोंट हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग द क्लास, सो द सोसाइटी विल बिकम वेरी गुड. Suggesting the change is possible if the children are grown up like this with the Kezia's heart, then it is possible to change the society if individuals choose kindness over the prejudice. Now conclusion of the story, the doll's house is prominent reminder of the harm caused by societal division की वजह से जो हो रहा उसके बारे में, एंड एम्पैथी के बारे में बताया गया. मैनीफील्ड्स इनवाइट रीडर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन बायसेस, कि कंसीडर करो कि लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ इवन स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, एक छोटी सी खुशी भी काइंडनेस अपने को अपनी जो है सो सोसाइटी में दूसरे लोगों को कितना खुशी आती वो अपने को बताया गया. एक्स एम्प्लीफाइड बाय द कीजियास जेस्चर एंड एल्स क्वाइटली जॉय. एल्स जो है सो ना बहुत खुश हो गई थी. इन दिस स्टोरी एक्चुअली इट्स like in the Bajrangi Bhaijaan film that Munni will be quiet, no, so in the story she also will be quiet, this other little girl. So at last only she told to her daughter sister that I have seen the lamp. तो वो बच्ची का जो देखने का नज़रिया है, उसकी जो खुशी है जो लैम्प को देख के, कि अमीर के बच्चे देख के केजिया जैसा खुश भी, ये भी बच्ची वैसी खुश हो रही, बल्कि अपने को यहाँ पर राइटर बता रहे कि वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट द mind of the children. The story's message is timeless, urging us to the question to the barriers we create and nurture compassion and equality in our interaction. So this is the conclusion of the story, that the story's message is timeless है, urging to the question और the barriers जो भी रहते हैं उसको रिमूव करो, बल्कि we create and nurture compassion and equality रहना इंटरेक्शन में अपने सोसाइटी के लोगों से. बच्चों को अपन जो है सो ये चीज़ सिखाना, काइंडनेस सिखाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, so that the society will grow without inequality. It's clear, no? So all the best, write well into the